सो हेलो। आज हम एक नया पोएम लेके आए हैं। दैट इज़ द लाइट ऑफ अदर डेज बाय थॉमस मोर। द लाइट ऑफ अदर डेज, व्हाट डज इट मीन? द लाइट हियर इट मीन्स द हैप्पी डेज, द गोल्डन डेज ऑफ अदर डेज। मतलब ये यहाँ पे यही बोला है कि आज का जो दिन है दैट इज़ डार्क। दैट मतलब the light of other days, here he is talking about his those days where he had spent the days with like the the sweet memories, the moment that he cherishes. So here it's actually a very I would say that it is a poem, a kind of emotional poem, yes, definitely. एंड आई वुड लाइक दैट हियर आपने जो समरी है इसमें यही बहुत सुंदर से एक्सप्लेन कर दिया है ओवरऑल अबाउट लाइक व्हाट इट इज़ एक्चुअली, क्या पे सेटिंग जो पोएम का बैकड्रॉप है उसको कैसे, मतलब व्हाट आर द थीम्स दैट इज़ that the poet has used in this poem. It's clearly been described here. You can see that The Light of Other Days is a sentimental poem. The setting is nostalgic. तो बहुत ही एक नॉस्टैल्जिक है, बहुत नॉस्टैल्जिया है, क्योंकि वो रिमेंबर, वो याद करते हैं अपने पुराने बीते हुए कल को, बीते हुए उसके पास्ट को, विच वे वेरी हैप्पी, विच वेर लाइक इट वॉज द डे दैट द मोमेंट्स दैट वर फील विद हैप्पीनेस। एंड ऑफन इन द साइलेंट नाइट्स द स्पीकर लाइज डाउन इन द बेड। और वो अभी भी, जैसे हम लोग अभी बड़े जब होते जाएंगे आप लोग, आपको भी ये आप रिलेट कर सकेंगे ये पोएम को, कि जो मेमोरी जो जो था, जो बीते हुए जो अभी मतलब द डेज दैट सपोज नाउ यू आर एट एडोलेसेंट एज, राइट? नाउ व्हेन you sometime go to bed and you just think about your childhood days, that those days where you spent with your friends, those carefree life, those carefree days where there was no tension, there was no worries about your career and all. But with the course of time, abhi to yes you are enjoying na, but with the gradual course of time you will realize that when you will reach your adulthood, when you will reach your at the last stage of your life, and you will be surrounded with many bitter and sweet memories, where memories will haunt you, and you will be like thriving for those days that I wish, तुम आप विश करोगे कि मैं उस दिन में अगर इस उस वक्त में अगर लौट जा चुका होता तो कितना अच्छा होता। Because it is the reality that when we will grow up, when we will be great, we will lose our loved ones. And by the thought of obviously when such thoughts lurks us, it's really very a kind of very haunting one, I know that. But yes, in this poem we can relate this, okay? So the speaker lies down in the bed, वो जब सोने के लिए मतलब when he goes there and ना that time जो वो memory lane में चले जाते हैं, वो memories, he used to recall the days, वो सिर्फ याद करते हैं उस मोमेंट्स को, उस यादें को वो तराशते हैं जो अभी नहीं है, ऑब्वियसली द डे दैट इज़ नो मोर, बट ही यस ही अर्न्स फॉर दैट। तो ये फर्स्ट में यहाँ पे वो मेमोरीज, द फॉर मेमोरीज, जो अच्छा जो वक्त था, जो अच्छा पल था, he used to remember those things, and they replete with the joy amid the tears and the laughter, the vim vigor of the boyhood years. तो वो जो जब बचपन जब वो मतलब when he was in the boyhood or in the childhood age, where he remembers, where he just like वो याद करता है कि कैसे उस पल को where he spent those years with so much happiness, it was filled with joy. बट soon the fond memories, जो अच्छा मेमोरी था, जो अच्छे यादें थे, वो कैसे टर्न हो चुका है, टर्न्स बीटर नाउ एज द स्पीकर इज ओवरकम बाय हॉटिंग सेंस ऑफ लॉनलीनेस। और वो जो क्यों क्यों वो जो मेमोरी अभी उसको होंट करता है, वो बिटर लगता है उसको, बिकॉज नाउ जब वो रियलिटी को जब वो रियलिटी में आता है, जब वो असलियत में वास्तविक में वो जब अपनी दुनिया में आता है, ही रियलाइजेज दैट ही इज़ लॉनली नाउ, ही इज़ नो मोर विद हिज फ्रेंड्स, he is no more with his loved ones. The moment the realization dawns on him that his boyhood days, his friends, and the words of love that he has shared, spent with those departed now are things of past. तो याद करते हुए वो बहुत ही वो उसका वो मतलब he feels very sad when he realizes that his friends are no more with him.
though they are just they have gone away. They have gone away to the land where no one comes back. सो ये सिर्फ फ्रेंड्स के रिलेटेड भी नहीं है, हम लोग का जो भी जीवन में आते हैं, जो लव्ड वंस, मे बी it is really painful, and we just can't we just don't want to imagine these things. But some things are like it's unpredictable. It's not unpredictable, actually, it's the truth. It's unavoidable, and you have to, right? So this is a very painful poem, I would say. The moment of the realization dawns on him, and he mourns over his dead friends and his dearest ones. That is what I says, that he mourns. वो एक्चुअली वो मनाते हैं, वो शौक मनाते हैं कि कैसे उसके जो दोस्त हैं वो चले गए, ओके, एंड हिज डियरेस्ट वंस हु आर वेरी फार ऑफ हिम, और वो जो जगह में जाता है और वो याद करते हुए कि हाँ, ये जो जगह था जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता था, वो जो गोल्डन डेज यूज टू स्पेंड विद देम एंड नो मोर, वो जगह वैसा अभी नहीं है, ओके. सो वेयर ही यूज टू डू, लाइक हियर ही सेज ना, यहाँ पे है जो, ही फील्स एज दो ही इज़ ऑल अलोन इन ए बैंक्वेट हॉल विच इज़ नाउ डेजर्टेड आफ्टर ऑल द मिर्थ एंड मैरी मेकिंग. तो जब एक शादी के माहौल में जाते हैं हम लोग, तो क्या होता है, ऑब्वियसली उस टाइम में बहुत ही लाइक एन्जॉयमेंट होता है, सब लोग एन्जॉय करते हैं, माहौल एक बहुत ही एंटरटेनमेंट, मतलब एक बहुत ही अलग सा एक माहौल बनता है, राइट. इट इज़ फील्ड विद लाइट्स, इट इज़ फील्ड विद मैरी मेकिंग, जॉय, फील्ड विद जॉय एंड ऑल. पर जब ख़त्म हो जाता है वो जो पार्टी, क्या होता है, एवरीथिंग कम्स इन ए लाइक चेंजेस, राइट. जो लाइट्स होते हैं, जो भी नए, सब क्या होता है, ऑफ हो जाते हैं. और जो 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 मतलब लाइक क्राउड होते हैं, जो चीयरफुल जो वातावरण बनाए रहते हैं, वो क्या होता है, सन्नाटा में परिवर्तित हो जाते हैं. तो इट इज़ सेम हियर. He's been the hall, which is once so pompously decorated with light and flowers and was so full of life, has now paled into an insignificant and colorless space. तो जैसे जब पार्टी ख़त्म होते ही सब कुछ मुरझा हुआ जैसा लगता है, जैसे कुछ हो गया है. And same he used to feel that the party is over and the lights have been put off, the garlands have waited, and the guests have all departed, and its speaker alone who walks drearily in the deserted hall. वो अकेला वहाँ पे मंडराते हुए वो actually he is loved with loneliness now. He is all alone, and a sense of death and loss runs throughout the poem. तो ये जब स्टेंजा हम पढ़ते हैं तो एक ही चीज़ बार बार हमको याद दिलाते हैं, the loss, the absence of our loved ones when they go away from our life and never comes back, and the death which is the reality, death which is unavoidable, death which is powerful, and it is over everything. तो एक बहुत ही पेनफुल पोएम है, और यहाँ पे सिम्बोलिज्म भी बहुत यूज़ किया है पोइट ने. वन ऑफ द सिम्बॉल आई विल एक्सप्लेन फॉर द वेरी फर्स्ट, दैट इज स्टेंजा. Not actually, it's not in stanza here. It has been there is no any stanza. It has been like flawlessly without any gap. The poet has used, there is no stanza here, and here it also means that how it's an overpouring of emotions that has been clearly depicted by the poet, by Thomas More. Oft in the stilly night, ere slumber chain has bound me. So when in the stilly night, जब एक टाइम होता है, जब रात ढलता है, और मतलब रात का टाइम होता है, और रात का टाइम क्या होता है, स्टिल, राइट. और वो ऑफ्ट यहाँ पे एक इट्स एन एंशंट इंग्लिश यूज्ड ऑफन, मतलब स्लम्बर चेन हैज़ बाउंड मी. तो क्या होते हैं, मतलब जब वो सोने जाते हैं बेड में, तो उसके बहुत सारे मेमोरीज उसको क्या करते हैं, लाइक ही इज़ बिन बाउंडेड इन मेमोरीज. हाँ, बहुत सारे यादों में वो लाइक ही गोज़ इनटू द मेमोरी लैंड. होता है ना, हम लोग का भी, हम रिलेट कर सकते हैं कि हम लोग भी एक यादों की दुनिया में हम लोग भी चले जाते हैं. फॉन्ड मेमोरी ब्रिंग्स द लाइट. और जो फॉन्ड मतलब क्या, जो अच्छे यादें हैं, वो जब याद करता है तो क्या लाते हैं, वो बहुत ही अच्छा फील करता है. इवन इट हैपन्स टू अस, कि जो यादें, जैसे हम लोग खेलते थे, एंड व्हेन यू यूज्ड टू रिमेंबर आवर चाइल्डहुड डेज वेयर हैप्पीनेस, जो हम लोग बहुत ही फुर्ती करते थे, राइट. देन ऑफ अदर डेज अराउंड मी, द स्माइल्स, जो हम लोग हंसी, यहाँ पे वही बोला है, द स्माइल्स, द टीयर्स ऑफ बॉयहुड ईयर्स, जो बचपन में वो जो
हंसी मजाक रोना धोना जो भी करता था वो उसको याद करते हुए उसको उसको अच्छा लगता है। द वर्ड्स ऑफ लव देन स्पोकन, तो यहाँ पे जो बोला है कि वर्ड्स ऑफ लव देन स्पोकन मतलब जो द वर्ड्स और यू कैन से दैट द वर्ड्स दैट वर स्पोकन बाय हिज लव्ड वंस, ओके, द कम्युनिकेशन ऑफ लव, द आइज दैट शोन, और जो जो जिस आँखों में वो स्पार्कल देखने को मिलता था, यस नाउ डीम्ड एंड गन। पर अभी वो क्या है, डीम्ड हो चुका है। डीम्ड मतलब क्या, जब लाइट मतलब ना जब एक बहुत ही धीमी धीमी आंच में जलता है उसको डीम बोलता है। तो जो ब्राइटनेस इट इज़ बिन नाउ कन्वर्टेड टू लाइक इट इज़ बिन फेडेड अवे, द चीयरफुल हार्ट्स, और जो हार्ट्स जो खेलता था, जो हमेशा एक फुर्तीबाज में था, वो अभी क्या हो चुका है, इट्स ऑल बिन ब्रोकन नाउ। दस इन द स्टेली नाइट स्लम्बर चेन हैज़ बाउंड मी, सैड मेमोरी ब्रिंग्स द लाइट। और जो भी अभी वो याद करते हैं उस मेमोरी को, और उसको क्या होता है, वो दुख, उसको दुख महसूस होता है। और of other days matlab he realizes that these days are gone and it will never turn, it will never come into reality. And here even we can relate, especially our loved ones, our especially even I have lost my father, so even I can relate that जब पिताजी के साथ जो भी हम यादें स्पेंड क्या हुआ, जब हम याद करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। बट एट दैट टाइम व्हेन आई रियलाइज दैट ही इज़ नो मोर विथ मी, it is beyond these feelings can never be like no, it can never be expressed, so let it be. Okay, that is something apart. When I remember all the friends solling together I have seen around me fall, so I remember, he used to remember, the poet used to remember जो जो दोस्तों के साथ वो खेला करता था, जो दोस्तों के साथ वो हमेशा लाइक ना वेयर ही स्पेंड हिज गोल्डन डेज, अभी उसको क्या हुआ, दिखते हैं वो गायब। मतलब ना आई हैव सीन अराउंड मी फॉल, उसको फॉल मतलब यहाँ पे रिलेट कर चुका है विंट्री। वो जो दो उसका जो डेड फ्रेंड्स हैं, जो उसके फ्रेंड्स दुनिया से चले गए हैं, उसको कंपेयर किया है लीव्स के साथ। कौन से लीव, विंट्री लीव्स, जो विंटर सीजन में इट हैज़ बीन, इट्स अ सिम्बॉलिज्म दैट हैज़ बीन यूज्ड बाय द पोएट हियर दैट because winter season is a season of what, it is not a season of happiness, it's a season of decay, it's a season of death, it is a season of like where destruction, जब सब कुछ मुरझा रहता है सब, like it is a symbol of death, it's a symbol of old stage, okay, so same पत्ते जैसे झड़ जाते हैं, और वैसे ही उसके दोस्त भी क्या हो चुके हैं, decayed, okay, he is no more and he is all alone now, I feel like one who treads alone, some banquet hall deserted। तो बैंक्वेट हॉल में क्या होता था, बैंक्वेट हॉल में क्या होता है एक्चुअली, पार्टी वगैरह होते हैं, मैरी मेकिंग होते हैं। तो अभी वो जो बैंक्वेट हॉल जब वो लोग वहाँ पे एंजॉय करते थे, अभी वो क्या हो चुका है, एक सुनसान रेगिस्तान के जैसा हुआ है, और वहाँ पे वो अकेला मंडरा रहा है, विद देयर आर नो फ्रेंड्स विद हिम। एंड हियर वी कैन गेस दैट द पॉइंट इज एट दिस लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ वेयर ही इज ऑल अलोन एंड एवरी वन हैज़ बिन गॉन अवे, हुज लाइट्स आर फ्लैट, हुज वेयर्स गार्लैंड्स डेड। तो यहाँ पे कंपेयर कर चुका है एक मैरी मेकिंग, एक ओकेजन में, जब ओकेजन होता है तो क्या होता है, एवरीथिंग सब चारों ओर ना, हम इमेजिन करते हैं एक शादी में क्या होता है, पूरा चारों ओर लाइट्स होते हैं, चारों ओर फूल वगैरह मतलब ना एवरीथिंग इज सो ब्राइट। एंड नेक्स्ट डे में ही क्या हो जाता है, एक समथिंग एवरीथिंग फिनिशेस, नॉट नेक्स्ट डे एक्चुअली, जब पार्टी खत्म होता है तभी लाइट ऑफ हो जाते हैं, जो भी फूल वगैरह सब मुरझा जाते हैं, और जो भी ऑडियंस मतलब गेस्ट आए थे वो लोग क्या हो जाते, चले जाते हैं, और अकेला वो है वहाँ पे। Thus in the steady night, ere slumber chain has bound me, sad memory brings the light of other days around me. So it's a very nostalgic, and that nostalgia which gives him a pain, which gives him like he is inflicted with pain now. So that is the reality here. तो थीम्स अगर हम कुछ बोलने जाएंगे, क्या क्या थीम्स है यहाँ पे, यस नॉस्टैल्जिक है ये, और थीम्स में है डेथ होगा, death of that is the reality that has been chucked here। and symbolism use किया है poet ने by using the winter season, where his friends has been compared with the leaves of the winter, where leaves decay हो जाते हैं winter season में, and here in the same way, so you can use this summary and can make question answers of it। and loneliness भी एक theme है, that is and the all stage of our life, this is also one of the themes। so these are all the themes जो poet ने use किया है। आइसोलेशन का मतलब ही loneliness है, तो आप लोग यहाँ पे ये रिलेट कर सकते हैं।
तो आई थिंक आपने समझा है ये पोएम को अच्छी तरह से और खूब बखूबी, ये बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही लाइफ रिलेटिंग पोएम है, तो यू विल लव इट, आई होप सो, एंड आई विल गिव यू द क्वेश्चन आंसर्स, सो प्लीज़ नथिंग टू वरी अबाउट दैट। थैंक यू।